write the differential equation representing the family of curve y equal to mx where m is arbitrary constant. So here only one arbitrary constant, so we differentiating with respect to x. So this is dy upon dx equal to m. dy upon dx equal to m. Put value of m in y equal to mx. So y equal to dy upon dx into x. So this is a differential equation. This is आंसर. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y upon x equal to dy upon dx. Okay, so this is the differential equation of second y equal to a into e raised to power ax plus b into e raised to power minus ax. Here a b are arbitrary constant. Capital A capital B are आर्बिटरी कांस्टेंट. कैसे हैं? आर्बिटरी कांस्टेंट है. देयर आर टू आर्बिटरी कांस्टेंट, सो वी डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन बाय 2 times एंड देन एलिमिनेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी. ओके, सो dy upon dx इक्वल टू द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इज a e raised to power ax plus differentiation of this, okay, plus b minus a e raised to power minus ax. Okay, understood? Now again differentiating with respect to x. Again differentiating with respect to x. हम इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में. सो दिस इज d square y upon dx square. The differentiation of dy upon dx with respect to x is d square y upon dx square, and this is a and a e raised to power ax plus b minus a e raised to power minus ax. E raised to power minus ax. So d square y upon dx square. This is a square e raised to power ax plus b a square e raised to power minus ax. Okay. So d square y upon dx square equal to a square is common, so taking common a square. So this is a e raised to power ax plus b e raised to power minus ax. So this is equal to y. This is equal to y. So d square y upon dx square equal to a square y. This is the required differential equation. यहाँ पर हमने a और b आर्बिटरी कांस्टेंट हैं, तो a और b कैपिटल A और कैपिटल B दोनों को एलिमिनेट कर लिया. सो दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0. ओके, अंडरस्टूड? फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग बाय द फैमिली ऑफ कर्व y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c e raised to power minus tan inverse x. c is arbitrary constant, so there is one arbitrary constant, so we differentiate only one time and eliminate the value of c. So differentiating with respect to x, so d upon dx y equal to d upon dx tan inverse x plus d upon dx c e raised to power tan inverse x. डिफ्रेंसिएशन y का डिफ्रेंसिएशन इज dy अपॉन dx, tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c. ओके, अब इस d अपॉन dx c e रेज टू पावर tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन, तो ये e रेज टू पावर tan इनवर्स x जो का तो रहेगा, और जो पावर है इस पर उसका डिफ्रेंसिएशन होगा d अपॉन dx tan इनवर्स x. सो दिस इज dy अपॉन dx इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c e रेज टू पावर tan इनवर्स x इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर.
multiplying by 1 plus x square. So this is 1 plus x square dy upon dx. Okay, this is 1 हो जाएगा. This is c e raised to power 10 inverse x. This is equation 2 सपोज कर लिया गया. Now from this y equal to 10 inverse x plus c e raised to power 10. इससे हम c e raised to power 10 inverse x की वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे. इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करके हम इसमें पुट करेंगे. सो दिस इज द वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ c e raised to power 10 inverse इन इक्वेशन 2. इक्वेशन हम 2 में पुट करेंगे तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 1 बाय माइनस 10 इनवर्स एक्स लिखा. सो दिस इज अवर फाइनल आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, y इक्वल टू e रेज टू पावर 2x a प्लस bx. देयर आर टू आर्बिटरी कांस्टेंट a एंड b. यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा होगा कि a एंड b आर आर्बिटरी कांस्टेंट. सो वी डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन बाय 2 टाइम्स एंड एलिमिनेट द वैल्यू ऑफ a एंड b. 2 बार डिफरेंशिएट करके हम a और b की वैल्यू को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे. सो dy अपॉन dx. प्रोडक्ट फार्मूले का यूज होगा. दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन. फर्स्ट फंक्शन को जो करते हैं लिखा, सेकंड फंक्शन a प्लस बी एक्स का डिफरेंशिएशन b होगा. फिर सेकंड फंक्शन को जो करते हैं लिखा e रेज टू पावर 2x का डिफरेंशिएशन 2 e रेज टू पावर 2x होगा. अब देखो a प्लस बी एक्स इंटू ई रेज टू पावर 2x को हम क्या लिख सकते हैं, बाई लिख सकते हैं. दिस बिकम 2y. ये होल क्या हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा. दिस इज 2y. दिस इज इक्वेशन 1. अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. सो दिस इज डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर. डी वाई अपॉन डी एक्स का हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे. देन इट इज डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर. दिस इज e रेज टू पावर 2x का डिफरेंशिएशन 2 इंटू ई रेज टू पावर 2x बाई का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx. अब फ्रॉम 1 से हम b इंटू ई रेज टू पावर 2x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. दिस इज इक्वेशन 2. फ्रॉम 1 इक्वेशन से b इंटू ई रेज टू पावर 2x इक्वल टू dy अपॉन dx माइनस 2y होगा. अब दिस वैल्यू b इंटू ई रेज टू पावर 2x पुट इन दिस इक्वेशन. सो वैल्यू ऑफ b इंटू ई रेज टू पावर 2x पुट इन इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 में पुट करेंगे हम. सो डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 एंड वैल्यू ऑफ दिस इज dy अपॉन डी एक्स माइनस 2y. dy अपॉन डी एक्स माइनस 2y होगी. ये वैल्यू पुट कर दी हमने b इंटू ई रेज टू पावर 2x की प्लस 2 dy अपॉन dx. ओके, दिस इज dy अपॉन dx. सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. ये अपना क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा. हम इसको आगे सॉल्व करके लिख लेंगे. ये बाय डबल डैश हो जाएगा आपका. दिस इज 4 बाय डैश हो जाएगा माइनस 4y. दिस इज द आवर फाइनल आंसर. ओके, अंडरस्टूड. ओके, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू y स्क्वायर माइनस 2ay प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाई एलिमिनेटिंग इट. सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सिर्फ एक बार डिफरेंशिएशन किया जाएगा. y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 बाई डी वाई अपॉन डी एक्स, y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x, a स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा x के रिस्पेक्ट में. सो दिस इज 2 बाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2x इक्वल टू 2a डी वाई अपॉन डी एक्स. 2 से 2 कैंसिल हो गया. a की वैल्यू बाय डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स. पुट दिस वैल्यू ऑफ a इन दिस इक्वेशन. इस इक्वेशन में हम a की वैल्यू पुट करेंगे. सो बाई स्क्वायर जो कहता हूँ 2y क्या होगा, कॉमन निकल जाएगा. a की जगह ये वैल्यू पुट कर दी गई प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर. सो दिस इज a स्क्वायर मल्टीप्लाइंग बाय dy अपॉन dx का होल स्क्वायर. dy अपॉन dx के होल स्क्वायर से थ्रू आउट इसको क्या किया गया, मल्टीप्लाई किया गया. सो दिस इज y स्क्वायर dy अपॉन dx का होल स्क्वायर माइनस 2y. एक dy अपॉन dx कट जाएगा, एक यहाँ पर बचा रहेगा माइनस 2y dy अपॉन dx इंटू बाय dy अपॉन dx प्लस एक्स.
इस एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर डी बाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, इसका ये डी बाई अपॉन डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू बाय डी बाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, देखो ये तो ज्यों का त्यों लिखा है, इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर से एक्सपांड करेंगे, सो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2 बाय डी बाई अपॉन डी एक्स इंटू एक्स, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस 2 बाई स्क्वायर डी बाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, 2x बाय डी बाई अपॉन डी एक्स, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 4x बाय डी बाई अपॉन डी एक्स, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ये माइनस, ठीक है, हो गया, ये माइनस ये दिस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज एक्स स्क्वायर डी बाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। सो आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाई स्क्वायर डी बाई अपॉन डी एक्स बाई स्क्वायर माइनस 4x बाय डी बाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, form the differential equation of family of circle touching y-axis at origin. So suppose that this one is x-axis, this one is y-axis. Okay, सर्किल टचिंग बाय एक्सिस एट ओरिजिन इस तरह से बनेगा, सेंटर इज a, 0 सपोज, तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस उसकी a हो जाएगी। सो इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल देखो क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्किल हैविंग सेंटर h, के रेडियस a क्या होता है, फार्मूला होता है अपना x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस बाय माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। हियर सेंटर इज a, 0, सो दिस इज x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस बाय माइनस 0 का होल स्क्वायर एंड रेडियस इज a, सो a स्क्वायर। सो दिस इज द आवर सर्किल। ओके, हियर this is x square plus a square minus 2ax plus y square इक्वल टू a square। a square से a square क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, दिस इज x square प्लस y square माइनस 2ax इक्वल टू 0। ओके, ये सर्किल है। ओके, हमें इसमें कितने आर्बिटरी कांस्टेंट हैं, देयर इज ओनली वन आर्बिटरी कांस्टेंट, तो हम सिर्फ इसे कितने बार डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद अब क्या करेंगे, उसको हम एलिमिनेट करेंगे। ओके, सो नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सो दिस इज 2x प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2a इक्वल टू 0। ओके, माइनस 2a इक्वल टू 0, सो दिस इज value of 2a is 2x plus 2y dy upon dx, this is the value of 2a। इसमें से 2 कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, सो वैल्यू ऑफ a इज x प्लस y dy upon dx। ओके, पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, इक्वेशन 1। ओके, पुट वैल्यू ऑफ a in 1, put value of a is 1, so this is x square plus y square minus 2x, value of a is x plus y dy upon dx इक्वल टू क्या होगा, इंटू एक्स भी आएगा, जब देखो ये 2x तो हमने कॉमन ले लिया, a की वैल्यू इक्वल टू 0। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर हो सकता है, इसको थोड़ा और हम सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। सो दिस इज वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, अंडरस्टूड। Form the differential equation
by the family of curve given by y equal to a sin bx plus c, a and c are being arbitrary constant. There are two arbitrary constant, so b differentiate 2 times and then eliminates a and c. So dy upon dx equal to a cos bx plus c into d upon dx bx plus c. So this is dy upon dx इक्वल टू, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा b. सो दिस इज ए बी कॉस बी एक्स प्लस सी. नाउ अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हम फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे. तो दिस इज डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर कॉस बी एक्स प्लस सी. ए बी स्क्वायर कॉस बी एक्स प्लस सी. सो डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू ए कॉस बी एक्स प्लस सी. अब ए कॉस बी एक्स, ए कॉस bx plus c. okay, again differentiating this one, so this is minus sin, okay, माइनस साइन आ जाएगा सर, माइनस साइन bx plus c. माइनस हम इधर ले लेंगे, दिस इज ऑल्सो अ साइन. सो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, बाय लिख सकते हैं. तो डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर बाय, या फिर डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय इक्वल टू 0 होगा. ओके, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स. सो cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, cos x का डिफ्रेंशिएशन होगा आपका माइनस साइन बी एक्स प्लस सी और इनटू क्या होगा, b होगा. ओके, तो क्या हो जाएगा, बी माइनस बी स्क्वायर इंटू ए साइन बी एक्स प्लस सी. सो this is our answer. Okay, understood. y equal to ax plus b upon x. a b are arbitrary constant. Okay, so हम इसको हमें दो बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं. सो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर. ओके, एंड अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स. सो डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए का डिफ्रेंशिएशन तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. इसको लिख लें यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स ए माइनस बी डी अपॉन डी एक्स एक्स रेज टू पावर माइनस 2. सो दिस इज डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 माइनस बी इंटू माइनस 2 एक्स रेज टू पावर माइनस 2 माइनस 1. तो डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2b अपॉन एक्स क्यूब. ये हो जाएगा 2b अपॉन एक्स क्यूब. इससे हमें 2b की वैल्यू मिल जाएगी, किसकी वैल्यू मिल जाएगी, 2b की, और इससे हम a की वैल्यू ले लें, ठीक ना. ओके, सो दिस इज 2b इक्वल टू एक्स क्यूब डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और b इक्वल टू हो जाएगा 1/2 एक्स क्यूब डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर. ओके, दिस इज इक्वेशन 2 ले लें अपन, इसे, इसको इक्वेशन 1 ले लें. ओके, सो बनी रहने दो इसको इक्वेशन 1. पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1. ओके, पुट वैल्यू ऑफ b इन 1. b की वैल्यू को हम 1 में पुट करेंगे. ओके, सो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, वैल्यू ऑफ b इज 1/2 एक्स क्यूब डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर. ओके, सो दिस इज क्या हो जाएगा, ये दिस वन इज
देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए माइनस एक्स अपॉन 2 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ओके, सो वैल्यू ऑफ एज हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स वाई 2 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब हमें ए की वैल्यू मिल गई, बी की वैल्यू मिल गई। पुट वैल्यू ऑफ ए एंड बी in this one equation y equal to ax plus b upon x. So y equal to value of a, this is value of a, dy upon dx plus x by 2 d square y upon dx square into x plus 1 upon x. Value of b is 1 by 2 x cube डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर। सो बाय इक्वल टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ओके, सो बाय इक्वल टू दिस इज x square by 2, this is also x square by 2, so this become x square d square by upon dx square plus x dy upon dx. Okay, this is our final answer. Okay, form the differential equation of the family of curve represented by c by plus c का whole square equal to x cube. In this देयर इज ओनली वन आर्बिटरी कांस्टेंट। सो हम सिर्फ एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ पर एक आर्बिटरी कांस्टेंट है, उसको एलिमिनेट करने के लिए हम सिर्फ एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स सी डी अपॉन डी एक्स वाई प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब। सो दिस इज 2 वाई प्लस सी 2 माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर। So this is 2c y plus c dy upon dx equal to 3x square. इस इक्वेशन को हमने फर्स्ट इक्वेशन सपोज किया है। क्या सपोज किया है? फर्स्ट इक्वेशन दे c y प्लस c का होल स्क्वायर अपॉन इक्वल टू एक्स क्यूब को इक्वेशन 1 माना है, इसको इक्वेशन 2 माना है। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1। ओके, तो 2 क्या है? 2c y प्लस c dy अपॉन dx 1 c y प्लस c का होल स्क्वायर, दिस इज 3x स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब। सो ये कैंसिल हो जाएगा। 2 वाई प्लस सी डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3 अपॉन एक्स। ओके, एक्स को इस तरफ ले जाएंगे, सो 2x 3 नीचे आएगा, 2x अपॉन 3 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई प्लस सी एंड वैल्यू ऑफ सी इज 2x अपॉन 3 डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई। दिस वैल्यू ऑफ सी पुट इन दिस इक्वेशन, इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ सी इन दिस इक्वेशन। सो वैल्यू पुट की 2x अपॉन 3 डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई ब्रैकेट वाई प्लस 2x अपॉन 3 डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब। इससे कैंसिल हो गया। ओके, अब हम इसको क्या सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद अपना जो या तो आंसर देखो हम यहीं पर छोड़ देंगे, दिस इज अवर आंसर, या फिर इसे आंसर यहाँ पर भी छोड़ा जा सकता है। एक आंसर ये भी हो सकता है आपका, ठीक ना, एक आंसर ये भी हो सकता है। इसको मल्टीप्लाइंग बाय 27 से हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो जो 8x क्यूब डी वाई अपॉन डी एक्स का होल क्यूब माइनस 12 एक्स स्क्वायर बाय डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 27x क्यूब। इसमें से हम एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे और एक्स स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो 27x हो जाएगा। तो एक आंसर आपका ये भी हो सकता है। ओके, अंडरस्टूड। Find the differential equation of the family of concentric circles x square plus y square equal to a square. Okay, so there are only one arbitrary constant, so we differentiate only one times. एक आर्बिटरी कांस्टेंट है तो हम उसे एक बार डिफरेंशिएट करके ए को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। ओके, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस इज 2x प्लस 2y
डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0. Okay, so this is x plus y dy upon dx equal to 0. This is our answer. Okay, now next question number 11. y equal to a cos 2x प्लस b sin 2x. हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है. यहाँ पर a और b कैसे हैं? आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं. So there are two arbitrary constants, so we differentiate 2 times and then eliminate value of a and b. So differentiating with respect to x, dy upon dx equal to minus a into 2 sin 2x plus b into 2 cos 2x. Okay, cos 2x का डिफरेंशिएशन माइनस 2 sin 2x, sin 2x का डिफरेंशिएशन 2 cos 2x. अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. सो दिस इज डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर. ओके, दिस इज माइनस 2a 2 cos 2x. दिस इज 2b minus 2 sin 2x. So d square by upon dx square equal to minus 4 is taken to common. So this is a cos 2x plus b sin 2x. a cos 2x plus b sin 2x is the value of y. So d square by upon dx square equal to minus 4y and this is d square by upon dx square plus 4y equal to 0. This is our final answer. Okay, अपना क्या आ गया है? फाइनल आंसर. Obtain a differential equation by eliminating a and b from equation. y equal to e raised to power x विदिन ब्रैकेट a cos x प्लस b sin x. इससे हमें a और b को एलिमिनेट करके डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना है, बनाना है. सो हम इसे पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे पहले. सो डी वाई अपॉन डी एक्स प्रोडक्ट फार्मूले का यूज होगा. दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस होल इज सेकेंड फंक्शन. फर्स्ट फंक्शन को हम जो कहते हैं लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स a cos x प्लस b sin x. फिर इसको हम जो कहते हैं लिखेंगे a cos x प्लस b sin x d अपॉन डी एक्स ई रेज टू पावर x. ओके, ये लिख लिया हमने. अब डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू दिस इज माइनस a sin x प्लस b cos x. ये डिफरेंशिएशन कर लिया इसका. इसको हमने जो कहते हैं लिखा a cos x प्लस b sin x इंटू ई रेज टू पावर x. ये जो कहते हैं लिख लिया. ओके, ई रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ई रेज टू पावर x होता है. अब देखो ये बाई आ गया पूरा. क्या आ गया? बाई. तो इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे? ये बाई रख लेंगे. दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई रेज टू पावर x b cos x माइनस a sin x प्लस y. ये हो गया अपना. ओके, क्लियर. अब देखें दिस इज, अब इसको हम फिर अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. हम उसे फिर से x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे. सो दिस इज डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ओके, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन. फर्स्ट फंक्शन को हम जो सेम लिखेंगे, सेकंड फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करेंगे. तो दिस इज माइनस बी साइन एक्स. अब यह इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस ए कॉस एक्स प्लस, अब
इसको ज्यों का त्यों लिखा, इसका डिफरेंशिएशन किया। अब हम इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे बी कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ई रेज टू पावर एक्स प्लस बाय डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, सो दिस इज, देखो ए माइनस हम कॉमन लेंगे इसमें से, चलो कॉमन लिए लेते हैं, माइनस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन ई रेज टू पावर एक्स ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। ओके, तो फिर से क्या हो गया, ये वाई हो गया। अब दिस इज बी कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स ई रेज टू पावर एक्स। अब देखो बी कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स, अब सपोज करो हम इसको इक्वेशन 1 ले लें, इसको इक्वेशन क्या ले लें, 2 ले लें। अब देखो इस इक्वेशन 2 से हमें इसकी वैल्यू मिलेगी ई रेज टू पावर एक्स बी कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, ये वैल्यू मिलेगी डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई, ये वाली वैल्यू मिलेगी हमें इससे, मिलेगी कि नहीं मिलेगी इस इक्वेशन से। ओके, तो यहाँ पर ये वैल्यू हम इसकी पुट कर दें, दिस वैल्यू इज डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई, ओके, प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, अंडरस्टूड। और इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, माइनस वाई रख सकते हैं, तो दिस इज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, 2 डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई। सो अवर आंसर इज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0। दिस इज अवर फाइनल आंसर। माइनस वाई माइनस 2y हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो ये प्लस 2y हो जाएगा, 2 डी वाई अपॉन डी एक्स लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो माइनस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ओके, सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल। ओके, 13 एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ए इज आर्बिटरी कॉन्स्टेंट, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। ओके, सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0। देयर इज ओनली वन आर्बिटरी कांस्टेंट, यहाँ पर सिर्फ एक आर्बिटरी कांस्टेंट है, तो हम उसे एक बार डिफरेंशिएट करके ए को क्या करेंगे, इलिमिनेट करेंगे। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस इज 2x माइनस 2a प्लस 4y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0, 2a इक्वल टू 2x प्लस 4y डी वाई अपॉन डी एक्स, ए इक्वल टू x प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स। पुट वैल्यू ऑफ a इन 1, सो दिस इज एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन 1। इसमें हम इस a की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, नाउ 14 form the differential equation of family of ellipse having foci on x axis and center at origin। फोकाई कहाँ पर है उसका, x एक्सिस पर उसका फोकाई है, और सेंटर कहाँ पर है उसका, ओरिजिन पे है। तो देखो इलिप्स इस तरह से बनेगा, ये इसका जो डायग्राम बनेगा वो इस तरह से बनेगा। सपोज करो ये बाई एक्सिस है, दिस वन इज एक्स एक्सिस। ओके, अब फोकाई कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पे है, तो जो इस तरह से इसका डायग्राम बन जाएगा। और इक्वेशन होगा इसका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ कंडीशन ये होगी ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के नीचे वाला कैसा होगा, बड़ा होगा, ए उसकी क्या होगी, कंडीशन होगी। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। सो दिस इज 2x अपॉन ए स्क्वायर, दिस इज 1 अपॉन बी स्क्वायर, 2 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमने क्या किया, उसे एक बार डिफरेंशिएट किया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर इज 2 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। ओके, सो दिस इज 2 डी वाई अपॉन डी एक्स 1 अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2x अपॉन ए स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। ओके, अंडरस्टूड। अब देखें, दिस इज x को हम इसके नीचे ले आए,
और बी स्क्वायर को उधर पहुंचा दें, तो दिस इज वाई अपॉन एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये ऐसा हो जाएगा। ओके, एक्स इसके नीचे आया। अब हम इसको फिर से डिफरेंशिएट करें, इसको ऐसे लिख लें, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं बाय इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको हम फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम इसको कर रहे हैं, तो इसमें कोशिएंट फार्मूले का यूज होगा। किसका यूज होगा, कोशिएंट फार्मूले का, दिस अपॉन दिस। सो इसको हम अरेंज करते हैं डिफरेंशिएशन के फॉर्म में। देखो डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे, सेम लिखा है डिनोमिनेटर इनटू डी अपॉन डी एक्स न्यूमरेटर, दिस इज वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस न्यूमरेटर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर ऑफ इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिकॉज दिस इज अ कांस्टेंट। ओके, नाउ अब देखें दिस इज एक्स, इसमें प्रोडक्ट फार्मूले का यूज होगा। किसका यूज होगा, प्रोडक्ट फार्मूले का, बाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। तो दिस इज, देखो ये क्या हो जाएगा, बाई को हमने सेम लिखा, डी वाई अपॉन डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स जो कहता हूँ बाई का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स होगा। ओके, माइनस बाय डी वाई अपॉन डी एक्स, इस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 1 होगा, अपॉन में एक्स स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, 0 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ओके, दिस इज अवर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, हम इसको सॉल्व किए लेते हैं। ओके, सो दिस इज एक्स बाय डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस बाय डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0, एक्स बाय डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस बाय डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। दिस इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। एक आंसर अपना ए भी हो सकता है, एक आंसर ए भी हो सकता है। ओके, अंडरस्टूड, दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके।